क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स पढ़ा रहे थे ना। पहले मार्केट्स किसको कहते हैं ये तुम लोग जान लिए कि मार्केट इज अ प्लेस where buyers and sellers come into close contact for the purpose of buying and selling a particular commodities with the mutual advantage. Why I am telling here is the mutual advantage because supply and demand can't interact to establish a single prices. That's why we are telling here that there is a mutual advantage, mutual agreement between buyers and sellers while movement of commodities from producer to consumer. Market is the place where commodities are bought and sold, whereas marketing is the activities where movement of commodities take place between buyers and sellers. It is the phases of activities where the movement of commodities took place between buyers and sellers. However, the term agricultural marketing is the marketing of whatever the activity involved in the processing or manufacturing or transfer of raw produces from producer to ultimate consumer. That is known as agricultural marketing. Whatever the terminology about the market, marketing and agricultural marketing we have to discuss earlier in the previous classes. And however, we have to discuss today is the classification of market. There are several dimensions of the market on basis of which markets has been classified. The market has been classified on the basis of location, on the basis of coverage of area, on the basis of time span, on the basis of stages of the marketing, on the basis of nature of competition, on the basis of volume of transaction, on the basis of degree of competition, on the basis of nature of commodities, whatever. There are different dimensions. There are 12 dimensions on the basis of which markets has been classified. Thus, we have to discuss about first classification is on the basis of location. It means where market is located. On the basis of location, the market may be classified as village market, primary wholesale market, and secondary wholesale market. Primary wholesale market and secondary wholesale market and village market. On the basis of location, we can classify the market as village market, primary wholesale market, and secondary wholesale market. What is the village market? When market is located in a small village in which the transaction took place between the buyers and sellers of the same village. It means who is buyers and sellers? Buyers and sellers are of villages itself. One of the producers of the village, they produce and sold within the village to the consumer. That is known as village market. And village is located in the village. Market is located in the village. That's why it is known as village market. However, under the second classification on the basis of the location, second classification is what? It is the primary wholesale market. What is it? It is the primary wholesale market. What is it? It is located in the near the production center or whatever the town is nearby the village. That is known as primary wholesale market. And a transaction of the commodities take place usually between the village traders and you can say that the producers of that village and the traders of a town, nearby town where it is located, market where it is located. इसका कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी होलसेल मार्केट वैसा मार्केट है जो गांव जो नियर बाई प्रोडक्शन
सेंटर्स है उसके पास वाला जो टाउन होता है उसमें प्रोड्यूसर ला करके सामान बेचता है, उसके बीच जो प्रोड्यूसर होता है उसके बीच और जो टाउन का ट्रेडर्स होता है उसके बीच कमोडिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होता है। ऐसे मार्केट को हम प्राइमरी होलसेल मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी होलसेल मार्केट जनरली ये लोकेटेड होता है बड़े बड़े टाउन में जो कि है वो रेलवे जंक्शन के पास है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मार्केट होता है वैसे मार्केट को हम सेकेंडरी होलसेल मार्केट कहते हैं। क्यों सेकेंडरी होलसेल मार्केट जो है वो कहा जाता है कि ये लोकेटेड होना चाहिए ट्रेडर सेंटर्स के पास या फिर रेलवे जंक्शन के पास, क्योंकि वहाँ जो एरिया है उस कंसंट्रेटेड एरिया है, प्रोडक्शन सेंटर्स है डिफरेंट विलेजेस का, वो मतलब लार्ज अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में उस कमोडिटीज को ला करके वो अपना जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे थोड़ा सा विकसित मार्केट है वहां पे ला करके बेचता है। इसलिए इसका जो लोकेशन है वो कहते हैं कि इट शुड बी लोकेटेड ऑन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स और नियर बाई रेलवे जंक्शंस। जहां पे भी जाओगे ना एक रेलवे जंक्शन के पास मार्केट जरूर ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। जैसे भागलपुर में जाते हो तो भी है, इधर तुम नौगछिया के साइड जाओ तो भी है ना, पीरपैंती के साइड जाओ तो भी है। जहां पे भी जाओगे वहां पे रेलवे लाइन के पास एक मार्केट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सकता है, प्रोड्यूसर्स इजीली अपनी कमोडिटीज को ला करके नियर बाई जो उसका हेडक्वार्टर्स है, मार्केट है, थोड़ा सा बड़ा मार्केट है, वहां पे ला करके बेच सकता है। यहाँ पे जो कमोडिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो ह्यूज अमाउंट में होती है ना? क्या होती है? ह्यूज अमाउंट में अराइवल होती है फ्रॉम डिफरेंट, जो भी उस छोटे मार्केट से लाया वो कहाँ जाएगा? हेडक्वार्टर के मार्केट पे। सपोज हम एग्जांपल यहाँ पे दे तो सपोज जिच्छो का वेजिटेबल जो है वो बिक रहा है जिच्छो में, लोकल कंज्यूमर जो है उसका वेजिटेबल खरीदता है, तो वो विलेज मार्केट हो गया। जिच्छो वाला लोग आया पूसा मार्केट में बेचने के लिए या फिर आया तुम्हारा 0 माइल में बेचने के लिए, वो प्राइमरी होलसेल मार्केट हो गया। और अगर जिच्छो वाला लोग या फिर इस एरिया में जितना भी जिच्छो जैसा विलेज है, डिफरेंट विलेजेस है, उसका प्रोड्यूसर कहाँ? भागलपुर मार्केट में आकर के बेचा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी होलसेल मार्केट, है ना? और अदर मार्केट इज टर्मिनल मार्केट। Terminal market is the market where producer is either ये जो मार्केट है हम लोकेशन के आधार पे बोल रहे हैं, तो ये लोकेटेड होता है कहाँ? मेट्रोपॉलिटन सिटी में। कहाँ होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में। यहाँ पे जो कमोडिटीज को प्रोड्यूसर्स अपना ये डिस्पोज ऑफ करने के लिए असेंबल करता है या फिर प्रोसेसिंग के लिए करता है या फिर जो वहां से मतलब सरप्लस एरिया से ला करके स्केर्स एरिया में कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करता है, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक मतलब स्टेट बोल रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम बेचते हैं। ये मार्केट कहाँ होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात बोले तो ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, all these are the metropolitan city. So market which is located in the metropolitan cities where the producer assemble their commodities either for the consumer or the purpose of the processors or assemble for the export, that is known as terminal market. यहाँ सीबोर्ड मार्केट लिखना भूल गए हैं, है ना? एक अदर मार्केट क्या था? सीबोर्ड मार्केट। तो seaboard market are the market which is located nearby the seashore. It is not necessary that it is located in the metropolitan city, but the market which is
mainly meant for the purpose of the export or import of that particular commodities, where commodities are assembled, and those market are क्या हो सकता है, इसमें फुल फैसिलिटीज रहता है मॉडर्न मार्केटिंग का, जिसमें कमोडिटीज को हम कहाँ पे स्टोर करके रखें, मतलब हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसकी फुल मॉडर्न मार्केटिंग फैसिलिटीज सीबोर्ड मार्केट में प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और कवरेज, मतलब कितना वाइड स्प्रेडेड है पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए वो मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मार्केट इज क्लासिफाइड एज लोकल और विलेज मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। जब अगर हमारा जो बायर्स एंड सेलर्स जो है वो लोकल एरिया का है, वो कमोडिटीज की बाइंग एंड सेलिंग उस एरिया में हो रही है, उसका कवरेज क्या है, स्मॉल है, मतलब लोकल है, विलेज ही तक सीमित है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उसकी जो एरिया है वो लिमिटेड एरिया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लोकल और विलेज मार्केट। रीजनल मार्केट हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर रीजन, जैसे हम कहते हैं कि बिहार में हमारा जोन है, ये जोन ये रीजन है इस कमोडिटीज के लिए, और इंडिया में भी ये रीजन है इस कमोडिटीज के लिए स्पेसिफाइड है प्रोडक्शन के लिए। तो जहाँ पे वो मार्केट जो है वो, मतलब जैसे हमारा फूड ग्रेन का है मार्केट है ना, लोकल मार्केट जो होगा वो लोकल मार्केट, ये लोकल मिल्क मार्केट और वेजिटेबल मार्केट आर एग्जांपल ऑफ village market or local market. However, food grain is an example of what kind of market? It is regional market. For example, जैसे हम सीरियल्स की मार्केटिंग करते हैं, तो जो रीजन सीरियल्स का प्रोडक्शन करता है, वहां का बायर्स एंड सेलर्स, when buyers and sellers drawn from that particular regions, that's why it is known as regional market. For example, what kind of commodities dealt in the regional market? It is the, and on buyers and sellers are drawn from the whole nations, that market are known as national market. For example, market of jute and market of tea, where the producers and consumers are widespread over all countries, and commodities are bought and sold over all the countries. That's why it is known as national market. And other are the which is largely widespread more than the regional markets. That's why it is known as national market. It covers all over the countries. Buyers and sellers of the commodities cover overall world or all countries. That is known as world market or international market. When we are going to market the machinery and deal with the marketing of the gold, marketing of the silver, that type of marketing is an example of world market. On the basis of the area and coverage. क्यों हम एरिया एंड कवरेज बोल रहे हैं कि लोकल जो है वो लिमिटेड टू द विलेजेस है, रीजनल पर्टिकुलर रीजन है, नेशनल एक पर्टिकुलर कंट्रीज है, वर्ल्ड जिसमें हम अपनी कमोडिटीज को, जो प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर जो है वो पूरे वर्ल्ड का कंज्यूमर हो सकता है। तो लोकल में विलेज लेवल तक ही कवर किया, रीजन में उससे ज्यादा कवरेज हुआ, और नेशनल में एक कंट्री कवर किया, और ये वर्ल्ड मार्केट में पूरे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कवर किया। तो हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कॉफी, मशीनरी, गोल्ड एंड सिल्वर आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड मार्केट. Jute and tea are the example of national market. Local milk, vegetable, etc. These are the किस टाइप का कमोडिटी जो होता है वो फ्यू आवर्स के लिए होता है और 1 डेज के लिए होता है। तो ऐसे अगर हम एग्जाम्पल बोलें तो शॉर्ट पीरियड के लिए किस टाइप का मार्केट होता है,
जो कमोडिटीज हाईली पेरिसेबल इन नेचर होता है, वैसी कमोडिटीज को हम किस चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बेच दें। दैट्स वाई इस मार्केट को हम कहते हैं कि ये मार्केट जो होता है, मतलब हम पूछ सकते हैं क्या कि फॉर दी एक्सट्रीमली पेरिसेबल गुड व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज एप्लीकेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। एंड कह सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड मार्केट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन, द शॉर्ट पीरियड मार्केट इज एप्लीकेबल फॉर द bought and sold of highly perishable commodities. And other market are the long period market. Long period market, it means period more than the short period, है ना। जो मार्केट होगा पर्टिकुलर कमोडिटीज का, वो शॉर्ट पीरियड से ज्यादा अगर उसकी मतलब हम ज्यादा ड्यूरेशन तक बेच पाएंगे, वैसी मार्केट को हम लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। मार्केट में बल्क में ला करके, मीन्स कमोडिटीज की जो क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, मीन्स हम कितना क्वांटिटी खरीदने और बेचने के लिए लाते हैं, उसके आधार पे मार्केट को हम बोलते हैं कि होलसेल मार्केट है और रिटेल मार्केट है। जब हम कमोडिटीज का खरीद या बिक्री लॉट्स में ह्यूज क्वांटिटी में करते हैं, बल्क में करते हैं, दैट टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज होलसेल मार्केट। और इस मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो किसके बीच होती है? वो हमारे जो ट्रेडर्स होता है उसके बीच होता है, और प्रोड्यूसर्स जो होता है उसके बीच होता है ना। टेक प्लेस मेनली बिटवीन दी ट्रेडर्स। जो विलेज ट्रेडर हुआ वो बेचेगा ला करके होलसेलर के पास, या फिर रिटेलर्स जो है वो ला करके होलसेलर के पास देगा। इट मीन्स ट्रांजैक्शन जो होता है मेनली दोनों ट्रेडर्स के बीच ही होता है, आइदर वो हमारा विलेज ट्रेडर्स हो या फिर रिटेलर्स हो। तो विलेज ट्रेडर और रिटेलर्स जो है वो होलसेल मार्केट में अपनी क्वांटिटीज को, अपनी कमोडिटीज को असेंबल कर करके लाता है और बड़ा अमाउंट में ला करके बेचता है। इट मीन्स बाउट एंड सोल्ड अ ह्यूज quantity of commodities or in a large lots. That type of market is known as wholesale market, in which transaction of commodities take place in these market between the trader, either between the village trader or to the retailers, or retailers to the wholesalers, है ना। And second one is retail market. What is it? It is when we are talking about the retail, it means the commodities are bought and sold in these market are as per the requirement of the consumer. It means whatever the commodities or quantities required by the consumer who is residing nearby the market, on the basis of their consumer need, the traders sold their commodity in those market. That is known as retail market. For example, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो भी हमारा ये यहाँ पे ब्लॉक चौक में मार्केट है, वो किस टाइप का मार्केट है? वो रिटेल मार्केट है, वो होलसेल मार्केट नहीं है। वहां पे हम लोग जितना यहाँ नियर बाई लोग रह रहे हैं, उन्हीं के कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के आधार पे जो ट्रेडर्स है वो कमोडिटीज को खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। तो उसमें बल्क में डील होता है। हम के आधार पे हम कमोडिटीज की खरीद और बिक्री करते हैं, वैसे मार्केट को हम रिटेल मार्केट कहते हैं। इसमें जो होता है, रिटेलर क्या करता है? डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। मीन्स हम अगर पूछे कि कंज्यूमर के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा मार्केट है, तो रिटेल मार्केट जो है वो कंज्यूमर के सबसे पास है, क्योंकि ये कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन
अगर हम पूछे कि कंज्यूमर के सबसे नजदीक वाला मार्केट कौन है, जो कंज्यूमर के सबसे पास है, तो रिटेल मार्केट है, वो कंज्यूमर के सबसे पास है। अब जब आगे पढ़ोगे ना, pathway through which a route through which commodities are bought and sold, this is known as the marketing channel। तो मार्केटिंग चैनल क्या है? रूट है, अल्टीमेट पाथवे है, जिसके थ्रू हम कमोडिटीज को खरीदते और बेचते हैं। तो जो फॉलो करते हैं पाथवे, वो कहाँ से राइजेस होता है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है? विलेज ट्रेडर के पास। विलेज ट्रेडर से कहाँ जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर से कहा जाता है? रिटेलर के पास। रिटेलर से कहा जाता है? कंज्यूमर के पास। लेकिन ये जो चैनल है ना, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कमोडिटीज खरीदी और बेची जा रही है, और वो एरिया जो है वो कितना डेवलप्ड है ना, वो एरिया कितना डेवलप्ड है। डेवलप्ड कहो तो वो प्रोडक्शन सेंटर्स जो है वो मार्केट से कितना दूर है या कितना नजदीक है। अगर प्रोडक्शन सेंटर हमारे मार्केट के पास है, तो एवरी प्रोड्यूसर्स क्या चाहेगा कि अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस उसको मिले। तो वो क्या करेगा? जाकर के मार्केट में खुद बेचेगा, बिचौलिए का जरूरत नहीं होगा। क्योंकि ये जो भी लोग प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे विलेज ट्रेडर, होलसेलर और रिटेलर, ऑल दे आर हु? इट इज इंटरमीडियरीज। कौन है ये लोग है इंटरमीडियरीज। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये सब लोग है जो है उसको हम क्या कहते हैं? मिडिलमैन। तो जितना नंबर ऑफ मिडिलमैन, टाइम लैग्स होगा प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने में कमोडिटीज, उतने लोगों के हाथ में जाएगा और उतना ज्यादा प्राइस रिस्क होगा, है ना। क्योंकि सपोज प्रोड्यूसर जो है वो बेचा किसको? विलेज ट्रेडर को, या फिर प्रोसेसर को, या फिर मिलर को। हमने बोला ना कि ये चैनल्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कमोडिटीज हम बेच रहे हैं मार्केट में। सपोज हम दूध बेच रहे हैं, तो हम विलेज ट्रेडर को ना बोल करके हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? वेंडिंग करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं। जो प्रोड्यूसर है उससे वेंडर कलेक्ट कर करके कहाँ जाता है बेचने के लिए? आइदर वो सुधा डेयरी का जो होता है स्टॉल, उसमें ले जा करके बेचता है, या फिर वो क्या मिठाई वाले दुकान में बेचता है। फिर मिठाई वाले दुकान से प्रोसेस होकर के कंज्यूमर्स के पास आता है, या फिर क्या करता है? वेंडर गांव से जाकर के दूध कलेक्ट करके डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है, या फिर जो प्रोड्यूसर है डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है। ये हमारा क्या है? पॉसिबल रूट है जिसके थ्रू कमोडिटीज कहां से? प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग चैनल। तो हमारी जो मार्केटिंग चैनल है वो जितनी छोटी मार्केटिंग चैनल हो उतना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रोड्यूसर्स को उसका शेयर मिलेगा और कंज्यूमर को कम पैसे पे कमोडिटीज अवेलेबल होगा, है ना। तो ये हमारा क्या था? होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। On the basis of nature of transaction, the market has been classified as spot or cash market और forward market। तो spot और cash मार्केट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे मार्केट को हम स्पॉट मार्केट बोलेंगे? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स हम कमोडिटीज को जो खरीदते और बेचते हैं उसका क्या आधार है ना। तो उसका आधार है कि इमीडिएटली हम पैसे पे करते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स को हम क्या, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, या फिर ट्रेडर्स को कंज्यूमर्स क्या करते हैं? पैसे पे करते हैं। तो जब हमारी जो कमोडिटीज की ट्रांजैक्शन होगी
वो इमीडिएटली हम बाय मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो होगा, बाय मीन्स ऑफ मनी इमीडिएटली, मतलब खरीदते और बेचने के समय जो मनी के थ्रू एक्सचेंज होगा कमोडिटीज का डायरेक्टली और इमीडिएटली, दैट इज नोन एज स्पॉट और कैश मार्केट। क्या कहते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, स्पॉट और कैश ही मार्केट करते हैं ना। जैसे हम जाते हैं खरीदने के लिए जिस भी मार्केट में हम कमोडिटीज खरीदते हैं, उसके बदले हम पैसा पे करते हैं, तो वैसे मार्केट को हम क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। लेकिन कुछ चीजों की मार्केटिंग ऐसी भी होती है कि हम डीलिंग तो अभी करते हैं, लेकिन कमोडिटीज का जो एक्सचेंज होता है वो लेटर पीरियड में होता है। सपोज आज हम कहीं फोन किए कि हमको, कोलकाता फोन किए कि हमको इतना मतलब सामान चाहिए आज के डेट में, उसकी हमारी जो भी हुई ट्रांजैक्शन प्रोसेस का के लिए डीलिंग जो हुआ, प्राइसेस जिस प्राइसेस पे हमको कमोडिटीज खरीदना या बेचना है उसकी डीलिंग हो गई, लेकिन वहां से यहाँ तक आने में हमको 10 दिन लगेगा, बोलेगा कि हम 10 दिन के बाद आपको भेजेंगे, तो T+1 टाइम हुआ ना, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। ये मार्केट कैसा मार्केट कहा जाता है, फॉरवर्ड मार्केट। जैसे हम कहते हैं ना कि प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो वो फॉरवर्ड मार्केट हुआ। सपोज हमारा मैंगो जो है, मैंगो का ऑर्चर्ड है ना, वो क्या करते हैं, हम अभी ही बेच देते हैं अपना मैंगो का ऑर्चर्ड कि आपको 5 महीने के बाद आपका फ्रूट ये आएगा, तो जो आएगा वो हमारा होगा, आप इतने पैसे में अभी डीलिंग हो गया, है ना। तो ये प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये क्या हुआ, प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसमें जो है, अभी मान लो कि उसका कभी ये तो अल्टरनेट बियरर है ना, तो किसी साल जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हमारा मार्केट में पैसे कम होते हैं, इसका मतलब उसका प्राइस कम होता है, और जब हमारा सप्लाई कम होता है तो हमारा प्राइस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना। इसको जो होता है वो T+1 टाइम में, और डीलिंग जो होता है वो T टाइम में होता है। दैट टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट आर दोज मार्केट इन विच परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज टेक प्लेस एट द टाइम, बट the exchange of commodities take place on a specified date in the future, है ना, that is T+1 टाइम, T+1 टाइम, है ना। इसमें मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल है कि डीलिंग जो हुआ है वो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज हो ही, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मे बी बोले कि नहीं, हमको तो ज्यादा प्राइस लग रहा है तो हम नहीं ये डिलीवर करेंगे, मतलब घट गया प्राइस, हम नहीं डिलीवर करेंगे, अभी मार्केट में इतना प्राइस है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। लेकिन इस प्रोसेस होता है कि आज हम डील किए और एक्सचेंज की जो मतलब बातें किए, जैसे कमोडिटीज का सप्लाई किए उस प्राइसेस पे, वो लेटर पीरियड ऑफ द टाइम दैट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कमोडिटीज, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑफ कमोडिटीज, उस मार्केट में बेचा जाता होगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कमोडिटीज in which transaction take place, on the basis of that the market has been classified as जनरल मार्केट एंड स्पेशलाइज्ड मार्केट। तो जनरल मार्केट बोलो तो सभी टाइप की कमोडिटी जिस मार्केट में बेची और खरीदी जाती है, वैसे मार्केट को हम जनरल मार्केट बोलते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड मार्केट वैसे मार्केट को कहते हैं जहां पे एक या दो टाइप का मार्केट होता है, और मार्केट जो होता है वो सेपरेट होता है। हर कमोडिटीज के लिए मार्केट क्या होता है, सेपरेट होता है। वैसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केट। क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केट। जैसे जनरल मार्केट में चले जाओ, वहां तो वैसे मार्केट में कपड़ा भी बिक रहा है, फल भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रहा है,
है ना। तो सभी टाइप की कमोडिटीज जिस मार्केट में बिकती है वैसे मार्केट को हम जनरल मार्केट कहते हैं। लेकिन स्पेशलाइज मार्केट, जैसे हम जाते हैं मार्केट में तो विजिट, जैसे वहां पे भागलपुर मार्केट जाते हैं, उसके रेलवे ट्रैक के नीचे जो बिकता है तो उसमें फ्रूट और वेजिटेबल सेपरेट है, फ्रूट इस साइड है और वेजिटेबल इस साइड है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मार्केट जो है स्पेशलाइज्ड मार्केट है, वो सिर्फ स्पेसिफिक कमोडिटीज की जहां पे खरीद बिक्री होती है। जैसे वेजिटेबल की खरीद बिक्री होती है तो वेजिटेबल मार्केट बोलेंगे, है ना। फूड ग्रेन का अगर मार्केट है तो फूड ग्रेन मार्केट बोलेंगे। अगर जहां पे सिर्फ ऊल की खरीद बिक्री होती है वो उसको हम ऊल मार्केट बोलेंगे, है ना। एग की जहां पे खरीद बिक्री सिर्फ हो रही है उसको एग मार्केट बोलेंगे। तो उस टाइप के कमोडिटीज जहां पे उस पर्टिकुलर ग्रुप की कमोडिटीज की खरीद और बिक्री होती है, दैट टाइप ऑफ मार्केट इज स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटीज, that is known as specialized market, in which transaction take place only in one or two commodities, है ना। for every group of commodities there is a separate market for that. for example, food market, vegetable market and fruit market, etc. ठीक है।